and I hope snacks were delicious. And I'm hoping that ma'am has cleared every doubt regarding HIV. So moving to our next section, we have a video from Government of India, Ayushman Bharat, supporting awareness regarding reproductive health and HIV. Please play. Poonam, I notice you have been constantly edging and walking awkwardly. Are you okay? I have developed some rashes and blisters in my private area. It is very painful. You should have told me earlier. Let us visit a doctor right now. Namaste, Meenaji. Namaste, Dr. Sahiba. Request you to kindly examine Poonam. She has some itching problem. You are suffering from reproductive tract infection, which affects both women and men and could be due to lack of personal hygiene, using dirty sanitary napkins, or presence of abnormal bacteria in the reproductive tract. It is good you shared it with your mother, else children often feel shy in sharing their reproductive health problems. This can cause serious complications and difficult to treat later. Please have these medicines and practice good personal hygiene. Try to use disposable sanitary napkins to avoid infection. Thank you, doctor. Welcome to our colony. I heard your husband is not well. Meena ji, thank you for your concern. Actually, we both are HIV positive and on treatment. Years ago, my husband had a surgery and got infected with HIV through contaminated blood transfusion. During my pregnancy, when my gynae doctor asked me to get HIV test, then we got to know about it. That is very unfortunate. What about your son, Sonu? Thanks to the government prevention of parent-to-child transmission program, I was given medicines during childbirth, and our son Sonu was born HIV negative and healthy. He's now 13 years old and extremely good in studies. Good to know that. You take care and let me know if I can help. What's happening? Why is there so much noise? Sir, some parents are protesting outside. Please calm down and let us talk in my office. Parents, please be seated and let us talk peacefully. We don't want our children to be infected with HIV. Sonu is not HIV positive, but his parents are. Your children are safe. We should not discriminate anyone living with HIV. Sonu will continue to study in our school. Doctor, please tell them about HIV and AIDS. HIV is a virus which affects the immune system of the body, while AIDS is the condition of weakened immune system caused by the HIV. There are only 4 modes of HIV transmission, which include unsafe physical relations, sharing or reusing needles, transfusion of HIV in blood and blood products, and transmission of HIV from infected mother to unborn child. There are medicines that help prevention of parent-to-child transmission of HIV. How do we find out if we are HIV positive? The only way to find out about HIV status is through an HIV test, which is available free of cost in all government hospitals. Okay, but is there any treatment? HIV is not curable, but there is treatment available for HIV. It is called antiretroviral therapy or ART. This is available free of cost in all government hospitals. With the right treatment and care, HIV positive people live productive and healthy lives like each one of us. For more information, you can call 1097 HIV helpline of National AIDS Control Organization. We should treat people living with HIV/AIDS with respect and compassion and offer them our care and support. Thank you for the information, doctor. Reproductive tract infections, RTIs, are easily treated and cured if diagnosed early. Maintaining personal hygiene is the most important way to prevent RTIs, and we should not feel ashamed to seek treatment.
Menstrual hygiene should be practiced by using clean and disposable sanitary napkins. HIV is preventable and everyone has a right to protect themselves from HIV. We should avoid unsafe physical relations, not reuse needles, access registered blood banks, and take medical help during pregnancy to avoid transmission of HIV from an infected mother to baby. It is important to challenge misconceptions and spread awareness about HIV/AIDS to prevent people from getting infected by HIV and begin a stigma and discrimination arising from these misconceptions. Please visit your nearest health and wellness center for accessing information about reproductive health services and HIV/AIDS. So there are many points to be highlighted in this video. Basically, we can divide this video into two parts. One part clearly mentioning RTI, we will discuss it later, and the second one was regarding HIV and its awareness. So what we take from this video, there are some take home messages. First one is clearly that it is not necessary to have an infected child if their parents are HIV positive. अगर पेरेंट्स HIV पॉजिटिव हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी HIV पॉजिटिव हो। दूसरी चीज है कि हर व्यक्ति को अगर HIV है भी तो अपने नॉर्मल लाइफ को जी सकते हैं अंडर प्रॉपर मेडिकेशन, और ये मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसके अलावा किसी को भी HIV के बेसिस पे हम जो है किसी भी प्रकार को से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये कुछ टेक अवे मैसेजेस था इस वीडियो से। इसके अलावा एक और चीज का जिक्र किया गया which was RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। हम इस पे भी आगे बढ़ेंगे। फिलहाल कुछ टेक होम मैसेजेस क्या है? HIV इज अ वायरस, ये हो गया था, ये केस स्टडी पे आ गई 5। ये केस स्टडी हम लोग कर लेते हैं तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी। Rita is 25 years old and wants to get married. After searching for a suitable partner, Rita and her parents identify Anand as her future husband. Her parents do a lot of background check about Anand, which is a part of our society. जब भी किसी लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो बहुत चीजें, तो by talking to colleagues at work, neighbors, finding out family connections, etc., and are satisfied with information they obtained. During these discussions, Rita remembers her HIV class in school and wants to be ensured there is no such risk with Anand. She asked her parents to get Anand's HIV test report as well. Her parents are little surprised by the unusual request. ये अनयूजुअल रिक्वेस्ट है बिल्कुल ही। अब पॉइंट टू डिस्कशन क्या है? व्हाट आर सम पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड? फर्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट रीटा's रिक्वेस्ट फॉर आनंद's HIV रिपोर्ट? सेकेंड वन, शुड रीटा और हर पेरेंट्स बी ऑफेंडेड इफ आनंद आस्क फॉर रीटा's HIV रिपोर्ट? The third one is, do you think a potential partner's HIV report could be useful? Why? You have 5 minutes. Please discuss.
wants to share your views, please come here and let's discuss the first point. What do you think about Rita's request for Anand's HIV report? Obvious, it is an unusual request, but is it right or wrong? She is absolutely right. She is aware. रीता का जो रिक्वेस्ट है वो जेन्यून है, ये एक अनयूजुअल जरूर है। अगर आपसे मुझसे कोई इस तरह का रिपोर्ट मांगे तो ये हाई परसेंटेज चांस है कि मैं ऑफेंड हो जाऊंगा, बट अभी के समय में हमें इतना अवेयर होना चाहिए क्योंकि रीता इज गोइंग टू इंटर इनटू हर न्यू जोन, शी इज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। तो अपने इस लाइफ को स्टार्ट करने से पहले ये उसका अधिकार है, ये उसका राइट है, हम सबका ये अधिकार है कि हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। ये नेचुरल राइट, एंड शी इज आस्किंग नथिंग रॉन्ग हियर, तो कुछ गलत नहीं मांग रही है। और आनंद को भी इतना अवेयर होना चाहिए कि उसे ऑफेंड नहीं होना चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, should Rita or her parents be offended if Anand asked for Rita's HIV report? अब अगर आनंद रिपोर्ट दे देता है कि मैं HIV नेगेटिव हूं, तो क्या आनंद Okay, let's get back to here. तो क्या रीता अगर क्या ये सीन हो सकता है कि आनंद भी रिपोर्ट मांगे? बिल्कुल। तो फिर रीता और उसके फैमिली को भी ऑफेंड नहीं होना चाहिए, ये उनको भी ठीक है। आखिरी है, डू यू थिंक अ पोटेंशियल पार्टनर्स HIV रिपोर्ट वुड बी यूजफुल? ये बिल्कुल HIV रिपोर्ट यूजफुल है। इसको मैंने मेंशन किया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को क्रिएट करने के लिए, अच्छी जर्नी को बिगिन करने के लिए सब कुछ का बेहतर रहना बहुत जरूरी है। चलिए आगे। पीछे एक स्लाइड पीछे। ये क्विज ऑन HIV है, वी हैव सम यस एंड नो रिगार्डिंग HIV, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर कर देगा। हालांकि अपने तरफ से मैम ने पूरा कोशिश किया कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, लेकिन अगर रह गए हो तो यहाँ ये क्विज हमें क्लियर कर देंगे। So clearly we have some statements regarding HIV and AIDS and answer in yes or no and their explanation. तो पहला क्वेश्चन है, all people with HIV have AIDS? Clear statement is no. जिसको HIV है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एड्स भी होगा। क्यों? अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है? Being diagnosed with HIV does not mean a person will also be diagnosed with AIDS. Healthcare professionals diagnose AIDS only when immunity in HIV infected person falls below a certain level or they begin to get severe opportunistic infections. क्लियर मतलब बता रहा है कि एड्स तब होगा जब इम्यूनिटी का जो लेवल है वो किसी लेवल तक गिर जाएगा, यानी कोई एक टर्म होगा, कोई एक डेटा होगा, उससे नीचे अगर आ जाता है तब हम बोलेंगे कि ये एड्स है। दूसरा है, HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू टचिंग, हगिंग और शेयरिंग फूड? क्लियर आंसर इज नो। टचिंग से, हगिंग से और शेयरिंग से, इन चीजों से HIV नहीं फैलता है। HIV is transmitted by mosquito bites or through other insect? No. Answer is no. ये इसको मैंने क्लियर किया था बहुत देर पहले। A person can get HIV infection by donating blood. अगर मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं तो क्या मैं HIV पॉजिटिव हो सकता हूं? नहीं। जो अगर मैं पॉजिटिव हूं तो वो हो जाएगा जो रिसीवर है, मैं डोनेट करने से मैं पॉजिटिव नहीं हूं। A person can get infected by HIV by sharing needles with someone who has HIV? Yes. ये हो सकता है, अगर एक ही नीडल दो लोग यूज करें तो वो HIV पॉजिटिव हो सकते हैं। It is impossible to protect oneself from becoming infected with HIV? क्या ये इम्पॉसिबल है कि हम खुद को बचा लें HIV से?
It is impossible to protect oneself. I think Yes. possible. Yes. By avoiding these 4 practices, like यहाँ पे मिस्टेक है, ये सही है, यहाँ पे पॉसिबल है, possible. वहाँ पे मिस्टेक है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल। अगर impossible है तो आंसर तब नो होगा। आगे बढ़िए सर। So we have all many more questions like that, और मैं इसे ग्रुप में भेज दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। हम लोग स्किप कर रहे हैं इस सेक्शन को, और ऐसे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग इस पे कर चुके हैं। So what are some take home messages? One should not stigmatize based on person living with HIV. हमें HIV पर्सन के साथ HIV जैसा व्यवहार नहीं, ऐसा व्यवहार ना करे कि वो नेग्लेक्टेड फील करे, क्योंकि हमने क्लियरली इस बात को, here I want to discuss my personal experience with a HIV positive patient. अगर आप में से कोई किसी HIV पॉजिटिव के साथ कभी रूबरू हुए हैं तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मैं शेयर करता हूँ। पहले मैं शेयर कर लेता हूँ, फिर आप शेयर करें। तो मेरे अंकल ही इज HIV पॉजिटिव। मेरे एक अंकल हैं, नॉट क्लोज वन, बट ही इज HIV पॉजिटिव। एक्चुअली ही इज अ सर्जन, वो सर्जन है, और एक बार वो सर्जरी के वक्त आज से 15 साल पहले somehow he got cut on his hand and he got infected with HIV। वो HIV पॉजिटिव है, डॉक्टर थे, अब तो रिटायर्ड हो गए। तो वो HIV पॉजिटिव है, और मैं उनके डेली लाइफ को मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। तो वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अब ये हो सकता है कि वो खुद एक डॉक्टर है, उन्हें सारी चीजें डिटेल में पता है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि उनके घर में उनके लिए पर्सनल इंडिविजुअल वॉशरूम है, और जो जरूरी की चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉम्ब, नेल कटर, रेजर, इस तरह का चीजें जो है वो उनके वॉशरूम में ही रहता है। उनके वॉशरूम में कोई दूसरे लोग अलाउड नहीं है, वो नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है एक HIV पॉजिटिव को देख करके, और वो बाकी अपना नॉर्मल लाइफ को रह रहे हैं। साथ में अगर खाना शेयर करें नो प्रॉब्लम, बेड शेयर करें नो प्रॉब्लम, जब तक कि डायरेक्ट ब्लड से रिलेटेड कोई कांटेक्ट नहीं होता है तो हमें HIV से कोई खतरा नहीं है। और इसीलिए HIV पेशेंट के साथ ये जरूरी है कि हम ऐसा फील करें कि दे आर पार्ट ऑफ अस। It is important to challenge misconception and spread awareness about HIV and AIDS to prevent people from getting infected by HIV and put an end to discrimination arising from these misconceptions। एक छोटा सा डिस्क्रिमिनेशन अभी जो हमने वीडियो देखा वहां भी राइज हो रहा था कि पेरेंट्स HIV पॉजिटिव थे, तो लोगों के मन में मिसकॉन्सेप्शन था कि मे बी बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो, और उसके साथ सिर्फ बैठने से क्लास में बाकी बच्चे भी पॉजिटिव हो सकते हैं। And that is why they were protesting against the school। लेकिन ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, हमें इस धारणा को बदलना है, चैलेंज करने का जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन से हमें दूर रहना है। There is no cure for HIV and AIDS, early diagnosis and antiretroviral therapy। एक ART ये एक थेरेपी है जो HIV एड्स के पेशेंट को दिया जाता है। ये क्या करता है, ये स्लो कर देता है हमारे बॉडी में HIV को, वो बहुत ज्यादा स्लो, मल्टीपल टाइम्स वो स्लो कर देता है। दिस थेरेपी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द ART सेंटर। और ये जो थेरेपी है वो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये कुछ टेक होम मैसेजेस हैं। 7 लेना है। अब एक बार 6 कर दीजिए, हम लोग करेंगे नहीं लेकिन पढ़ जरूर लेंगे। इसको एक बार पढ़ लेते हैं बस क्या कह रहा है। राहुल लॉस्ट हिज फादर, ताकि इसके जो टेक अवे मैसेजेस हैं उसको हम डिस्कस कर लें। राहुल लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज जस्ट अ चाइल्ड।
He is a young man now and lives with his mother. He works at a senior position in a factory. Sonal is a bright young girl working in a science research laboratory. She resides in a hostel close to Rahul's place. They became good friends and want to get married, but there are problems. Rahul is HIV positive. It was detected during a routine health check-up conducted in the factory where he works. The managing director of his factory has taken the decision to remove him because of his HIV status. ये एक चीज यहाँ समझना जरूरी है कि HIV के साथ जो है एक वर्ड आ गया स्टेटस, यानी कि वो व्यक्ति की कोई गलती नहीं है. Somehow he got infected with the virus and soon that his infection became his status. उसकी बीमारी ही उसकी पहचान बन जाती है. तो उसकी इसी पहचान के वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है. Sonal too has a problem. She was in love with Bikram, a colleague in her place of work, and that relationship resulted in her pregnancy. Bikram went abroad a couple of months back and soon wrote back to her ending their relationship. Sonal went into depression. That's when she became friends with Rahul. Rahul does not know that Sonal is pregnant and Sonal does not know of Rahul's HIV status. Dr. Khurana, consulted by both, know the truth about them. अब ये डॉक्टर है जो दोनों के बारे में जान रहे कि HIV है, वो प्रेग्नेंट है. But he doesn't divulge their respective problems to one another for ethical reasons. Rahul's mother is excited to know about his plan to marry Sonal, although she is aware of his HIV positive status. She persuades him to marry Sonal as early as possible so that they may have a baby soon. ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन है, सबके साथ अपने इश्यूज हैं. तो पॉइंट टू डिस्कशन है, आप एक बार इसे भी पढ़ लें. व्हाट डू यू फील अबाउट राहुल्स मदर पोजीशन? राहुल मदर का उसका क्या कंडीशन है? वो जान रही है कि मेरा बेटा HIV पॉजिटिव है और इसके बावजूद भी वो चाहती है कि ये जल्दी से जल्दी शादी कर ले. Somehow she is selfish. Is the managing director action justified? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत था. HIV एक इन्फेक्शन है, इट इज नॉट अ स्टेटस. Did Dr. Khurana take the right decision? क्या डॉक्टर खुराना ने सही डिसीजन लिया? ये हाँ, ये बिल्कुल सही डिसीजन था. अब डॉक्टर्स के अपने इथिक्स हैं, वो आपके टेस्ट का रिपोर्ट आपके बिना परमिशन का दूसरे को नहीं बता सकते. यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अगर आप देखें तो इथिकल चीज मेंशन होगा. हाँ, डॉक्टर अपने इथिक्स से बंधे हुए हैं, वो नहीं बता सकते क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां इस तरह की चीजें स्टेटस से जोड़ करके देखी जाती है. अब हम टेक होम मैसेजेस ले सकते हैं. क्या है? इट इज इलीगल टू टेस्ट फॉर HIV विदाउट कंसेंट. क्या है कि हम बिना मर्जी का किसी का HIV टेस्ट ना करवा सकते हैं, ना ये परमिशन से होनी चाहिए, कंसेंट से होनी चाहिए. HIV स्टेटस कांट बी डिस्क्लोज विदाउट द इंडिविजुअल्स परमिशन. ये हमने देखा डॉक्टर से बंधे हुए थे और ये सही भी है. HIV का स्टेटस अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मेरे परमिशन के बगैर डॉक्टर किसी से शेयर ना करे. HIV पॉजिटिव स्टेटस कैन नॉट बी द बेस ऑफ एक्सपल्सन फ्रॉम द जॉब और स्कूल. दोनों केस हमने देखा. एक केस में उसको जॉब से निकाला जा रहा था और एक केस में स्कूल में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. People living with HIV and AIDS have the right to live free. अब उनके लिए क्या क्या लाइफ है, क्या क्या राइट है? तो राइट टू लिव फ्री ऑफ स्टिग्मा, कोई जज ना करे किसी तरह से, उनका स्टेटस ना बनाए, ना ही उनको डिस्क्रिमिनेशन को फेस करना पड़े. ईच वन ऑफ अस नीड्स टू इंश्योर दैट दे आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी लाइक एनी अदर पर्सन. उन्हें भी उनकी भी अपनी प्रतिष्ठा है और वो भी उतने ही प्रतिष्ठित है जितना जो HIV निगेटिव है. तो कुल मिला के बात यह है कि हेल्दी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशियस फूड, काउंसलिंग, फॉलोइंग द डॉक्टर. यह कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि अगर हम प्रॉपर डाइट को फॉलो करें, प्रॉपर मेडिकेशंस को आगे लेकर के चलें, तो हम
HIV पॉजिटिव होने के बाद भी एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा RTI पे आ जाते हैं। RTI एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वीडियो में भी मेंशन हुआ था। सबसे पहला स्लाइड जो किसी तरफ ऊपर चला गया, अब RTI के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। RTI क्या है? एक सॉर्ट्स ऑफ नॉर्मल इन्फेक्शंस है, आमतौर पर एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसके रीजंस क्या होते हैं? इसके रीजंस हो सकते हैं कि हम जो कपड़े यूज कर रहे हैं, अंडरगारमेंट्स यूज कर रहे हैं, वो गंदे हैं, या फिर हम प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन नहीं करते हैं, तो ये रीजन हो सकता है RTI के लिए। तो इसके बारे में जो चीजें थी आप एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। RTI अफेक्ट बोथ वुमेन एंड मैन, दोनों को हो सकता है। इसमें होता क्या है कि रेसेस पड़ जाते हैं। जो प्राइवेट एरिया है, जब हम वीडियो देखे, उस वीडियो में जो आई थिंक दैट गर्ल वाज पूनम, आई थिंक उसको RTI हो जाता है, इचिंग, और इट वाज वेरी पेनफुल आफ्टर इचिंग। तो RTI कैन बी कॉज्ड बाय मेनी रीजंस इंक्लूडिंग लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन और इम्बैलेंस ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अनट्रीटेड RTI Untreated RTIs can become chronic and be the cause of serious complications. अगर ये नॉर्मल है, बिल्कुल किसी को हो सकता है और होता है सबको, अगर इसको समय पर हम ठीक ना करें तो ये क्रोनिक और सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। नेवर नेग्लेक्ट एनी डिस्कम्फर्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एसोसिएटेड विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस तरह के किसी भी जो चीज नॉर्मल नहीं है, अगर वो हो रहा है, हम उसे इग्नोर ना करें। मोस्ट RTIs आर इजीली ट्रीटेड एंड क्योर्ड इफ डायग्नोज्ड अर्ली। अगर हम समय पर इलाज करेंगे, इसका कंप्लीटली इलाज है। एडोलेसेंस में ये कॉमन है, आपको देखने को मिल सकता है। Maintaining personal hygiene is the most important way to prevent RTIs. If RTI symptoms occur, there is nothing to be ashamed about, and immediate medical help should be sought for a qualified doctor from a qualified doctor. हमें क्वालिफाइड, अब ये क्या है, एक और यहाँ पर धारणा है, इस तरह की चीजें होती है तो लोगों सड़क के किनारे जो है दांत खाज खुजली वाले से दवाई ले लेते हैं। दिस कैन कॉज सीरियस इलनेस एंड कॉम्प्लिकेशंस। तो इसीलिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब्ड डोजेज इवन इफ द सिम्टम्स इंप्रूव। कभी कभार होता है हम दवा लेना शुरू करें, सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और हम दवा छोड़ देते हैं, लेकिन इस केस में, RTI के केस में, डोज कंप्लीट होना जरूरी है। बाकी जानकारी के लिए हम क्वालिफाइड डॉक्टर से बातें कर सकते हैं, आशा, ANM, आंगनबाड़ी। इनके अलावा हम ट्रस्टेड एल्डर्स के पास भी जा सकते हैं। ये बच्चों के लिए, ये तो हो गया ये सब बाकी। अब ये केस स्टडी है, मालविका का केस है। मालविका इज जस्ट turned 17 and is going to be married soon. कल हमने डिस्कस किया था कि चाइल्ड मैरिज वेरी ऑफन है। अबाउट 23% फीमेल चाइल्ड्स आर मैरिड इन देयर अर्ली एजेस। तो मालविका इज turned 17 and is going to be married soon. Her friend jokingly informed her that she will have to become pregnant soon after marriage. Malvika is quite upset with this information. She is not sure if she is ready to have child at the moment. अब ये मालविका का केस है। क्या पॉइंट है टू डिस्कस? इज मालविका ओल्ड इनफ टू बी मैरिड? क्लियरली नो। आप इसको डिस्कस करें 2-3 मिनट में, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आप लोग जो है इस पर सोचिए, मैं बस 2 मिनट में आपको ज्वाइन करता हूँ।
आधा घंटा रोहित क्या है सर सर फोन कर रोहित सर। हाँ तुम बोलिए ना, यही मोबाइल भूल गए वो भी। कितना देर वही पता चला, निकल कहाँ मैं। इसमें फोन आपका हमको लगा मैम के पास है। मैम नहीं चल रहा है। देख लीजिए निकाला हुआ ना आपको उसी नाम देखिए। हाँ चल कितना देर और तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। इज मालविका ओल्ड इनफ टू बी मैरिड? नहीं, बिल्कुल नहीं। न्यू एज जो फिर से लाया गया चेंज करके, लड़कियों के लिए भी 21 है, पहले 18 था, नाउ द न्यू एज इज 21। व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग अ चाइल्ड एट दिस स्टेज, एट दिस एज? इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट हो जाना, तो इसके क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? बच्चे और माँ दोनों को जान का खतरा हो सकता है, बिकॉज मालविका इज नॉट मैच्योर इनफ, शी हैज नॉट स्ट्रेंथ इनफ टू हैंडल दिस पेन। तो इसीलिए उसके जान को भी खतरा है, और बाकी करियर तो ऑलरेडी उसका जो है अब शादी होने के साथ जो है ज्यादातर चांस है कि नाउ शी इज फिनिश्ड। इसको स्किप कर देना। तो चाइल्ड मैरिज फाइनली लास्ट में जो है चाइल्ड मैरिज को करेंगे। चाइल्ड मैरिज रिगार्डिंग जो है हमें थोड़ा अवेयर होना है, क्योंकि 17% लड़के और 23% लड़कियां ये इस चीज के शिकार है हमारे देश में। तो एडोलेसेंट प्रेगनेंसी इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए चाइल्ड मैरिज। मालविका इससे ग्रसित होने वाली है। अर्ली प्रेगनेंसी हैज मेनी हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड लाइफ. It adversely affects the health of both the young mother and her child, since her body may not be ready to nourish a child till she is older. यानी कि एडोलेसेंस के एज में ये इन चीजों को हमने कल डिटेल में डिस्कस कर लिया था कि इस एज में आने के बाद हमारे ऑर्गन्स इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो हार्मोन्स रिलीज कर सके, चाइल्ड को बेयर कर सके, बट बॉडी जो है उस स्ट्रेंथ को जो है वो अभी तक जो है अचीव नहीं करता है, और यही खतरे की बात है। Besides this, as discussed in the child marriage activity, child marriage and early pregnancy can have negative consequences on opportunity of education, career, economic productivity, socio-economic independency of adolescents and mental health. तो एक एडोलेसेंट के ऊपर में क्या असर डाल सकता है चाइल्ड मैरिज, वो यहाँ क्लियरली मेंशन है। What are some take-home messages? Responsible behavior is essential to maintain good health. यानी कि पूरा जो निचोड़ है वो गुड हेल्थ के ऊपर में था, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना बहुत जरूरी है। Establishing equal and respectful relation with one's partner. This include being assertive about one's choice and body and respecting the partner's choice. Early pregnancy can have a negative impact on mother and child. ये भी जो हमने मेंशन ऑलरेडी डिस्कस किया। This can be addressed by avoiding child marriage. Marriage before the age of 18, सॉरी ये 18 ही है, अब 21 दोनों के लिए है, लड़का लड़की अब दोनों के लिए 21 है। तो 21 among girl and boys respectively, इस बात का ध्यान रखें। Use of contraceptions to avoid early and unintended pregnancy, इसके लिए सजेस्टेड है कि हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करें। Accessing reproductive health services for accurate knowledge and services, हम इस तरह से चीजों को प्लान करें अपने फ्यूचर में, और तभी
So finally, child marriage is illegal as per Act Prohibition of Child Marriage Act. Child marriage एक illegal चीज है, इससे हमें नहीं, हम तो अवेयर रहे ही और बाकी लोगों को भी अवेयर रखें. And I think that is enough from my side. जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इनमें जो है एक छोटा सा टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए रखा गया है जो इसी पर बेस्ड है. जो हमने आज का जो हमारा 2 मॉड्यूल था, एक मॉड्यूल HIV से रिलेटेड था और दूसरा जो है सब्सटेंस मिसयूज से रिलेटेड था. तो नहीं भेज रहे हैं प्रिंट आउट तो फाइनली हम लोग का जो है 2 days इन हाउस ट्रेनिंग जो है एक बार अपने एंडिंग स्टेज में है और जब तक कि आपका क्वेश्चन पेपर आ जाए तब तक जो है हम लोग थोड़ा देर के लिए एक फीडबैक सेशन रख लेते हैं. अर्ली फीडबैक सेशन जो कि ऐसे बाद में होता, अब अर्ली रख लेते हैं, उसको पहले रख लेते हैं जब तक कि क्वेश्चन आ ना जाए. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी में से कोई भी यहाँ आए और इस 2 दिन के सेशन का मुझे फीडबैक दें, मुझे अच्छा लगेगा, बेहतर मैं फील करूंगा. एंड थैंक यू वेरी मच. क्या हुआ? लास्ट में सुबह सर भी पीछे हैं, वो भी देते हैं. सुबह सर पे ध्यान दीजिए. पब्लिक डिमांड पर आप ही रहते हैं. सभी लोगों को पुनः धन्यवाद. मेरे लास्ट फीडबैक सेशन है, इसमें बताया जा रहा है कि जो जो चीजें बताया गया हमारे लिए कितना यूजफुल है और कितना जो हम लोग टाइम वेस्ट किए यहाँ पे, हम लोग टाइम पे जो लगाए, हम लोग टाइम पे जो पुकारे परवाह कर रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं कि ये जो समय है और जो आप दिए हैं वो बेहतरीन समय था और आपको कुछ सीखने का और कुछ सिखाने का अवसर प्रदान किया है. जो रोहित सर के द्वारा रिसोर्स को जनरेट किया गया है वो इतना बेहतरीन था कि हर एग्जाम में, चाहे वो पैदावारी का सेक्शन हो, चाहे वो स्कूल का सेक्शन हो या अदर आप अपने लाइफ में किसी भी प्रकार की परेशानियों में हैं तो इस चीजों से आप अवगत रहें और अवगत जब इस चीजों से रहेंगे तो अपने आप बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी.
और यहाँ तक कि अपने बारे में ही नहीं, आप अपने साथ साथ अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जो आज का सेशन में था कि आप अपने बारे में, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के बारे में, अपने समाज को सुरक्षित रखने के बारे में, और पर्यावरण को अगर आप अच्छा रखते हैं तो उससे भी आप निश्चित रूप से अच्छे महसूस करेंगे और अपने लोगों को भी अच्छा महसूस करवाएंगे। और ये जो सेशन की बात है तो बेहतरीन सेशन रहा, और कल का सेशन भी इससे और भी बेहतरीन माना जाएगा, क्योंकि हर दिन लोग कुछ कुछ नया सीखते जा रहे हैं। तो और भी बेहतरीन आज का सेशन कल से भी बेहतरीन माना जाएगा, क्योंकि कल जो था वो आपके एडोलेसेंस पे अवस्थित था, किशोरावस्था के बारे में। क्योंकि हमारे यहाँ जो इतने भी बच्चे हैं सभी एडोलेसेंस पीरियड में हैं, जो कि 10 to 19 बताया गया है, ये WHO के वक्त दिया है। जबकि इसका जिन प्याजे की बात किया जाए तो 11 to 18 तक दिया गया है। तो ये चीजें बताया गया है कि किशोर अवस्था को समझना है, और हर किसी को समझना। जब हम लोग शिक्षक हैं तो शिक्षक अगर नहीं समझेंगे तो बच्चे कैसे समझेंगे। तो हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी था कि एक किशोरावस्था में जो बच्चे हैं जो 19-18 ईयर्स तक पहुंचे हुए हैं, जो हमारे यहाँ बच्चे उपस्थित रहते हैं स्कूल में, उनके मनोदशा को समझना है, उनकी समस्याओं को समझना है, उनको बेहतरीन कैसे किया जाएगा उसके बारे में समझे। तो ये सारे किशोरावस्था में एडोलेसेंस से रिलेटेड सारे कल जो टॉपिक हुए थे उस पे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके अलावे आज का भी सेशन था जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित था। लोगों के जो डिस्क्रिमिनेशन की भावनाएं आती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि कौन सा बीमारी है। लोगों ने कहा अरे उसको HIV हो गया, अरे सब ये सब भावना नहीं होना चाहिए, ये शायद रहने वाला नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ही आप सुनते को HIV हो गया, उसको एड्स हो गया, अरे वो बीमार है, कहाँ उसको फेरा में पड़ रहे हो, उसके चक्कर में तुम पड़ रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों करता है ऐसा? करने के पीछे रीजन है कि हम लोग एजुकेट नहीं हो पाते, इस चीजों पर जानकार नहीं हो पाते। तो अगर मेरे पास ये जानकारी है HIV एक सिर्फ वायरस है, ये कितने लोगों को पता हो? आप लोग बता सकते हैं कितने लोगों को पता हो? बहुत कम लोगों को। अब शिक्षक है, हम लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं, इसलिए ये प्रशिक्षण जो है हमारे लिए बहुत ही यूजफुल रहा। इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, और प्रोफेसर को स्पेशली 2 दिन का उन्होंने समय लेकर रांची गए थे और हम लोगों को सिखाए, इसके लिए उनको स्पेशल धन्यवाद। और हमारे को धन्यवाद जो इसलिए खर्च करके हम लोगों को सिखाने के लिए ये सारे मेहनत किए हैं। तो यहाँ के प्रिंसिपल डायरेक्टर सभी सरों को मेरे तरफ से और मेरे स्कूल के सभी शिक्षकों के तरफ से धन्यवाद। एक बार रोहित सर की जोरदार और कोई? आनंद सर। अजीत सर कुछ बताइए। जैसा कि पिछले 2 सेशन में हमने देखा जिस तरह का सत्र संपन्न हुआ है, हमें लग रहा है कि हम किसी क्लासरूम में, किन्हीं को लग रहा हो कि बायोलॉजी की क्लास चल रही है, लेकिन यकीन मानिए प्रस्तुतिकरण बहुत ही कठिन काम है। इस तरह का माहौल तैयार करना कहीं ना कहीं प्रस्तुतकर्ता की दक्षता है, उसकी निपुणता है, वो इस तरह से तथ्यों को प्रकट कर रहा है, इस तरह से हमारे सामने रख रहा है कि वो सारी बातें हमें इतनी ज्ञानवर्धक लग रही हैं, हम खुद को एक विद्यार्थी के रूप में पाते हैं और प्रस्तुतकर्ता एक आचार्य की भूमिका में हमें सिखा है। कहीं ना कहीं मैं निश्चित रूप से हमेशा ही, जब से मैं इनके संपर्क में रहा हूँ रोहित सर के समय, हमेशा ही मैं इनसे हमेशा सीखने को मिला है। और आज के इस सेशन में बीते 2 दिनों से जब से मैं उपस्थित, मेरी जानकारियों में बहुत ही बढ़ोतरी हुई। जिन जानकारियों को लेकर मैं सशंकित था वो जानकारियां दृढ़, और मैं आशा करता हूं कि जो भी जानकारी आज हमें प्राप्त हुई है उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने शैक्षणिक माहौल को, अपने विद्यालय के माहौल को काफी बेहतर ढंग से बनाते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए हम सभी लाभान्वित होंगे और अपने छात्रों, विद्यार्थियों के बीच इसका लाभ पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
और कोई जो मुझे फीडबैक देना चाहते हैं? अपना उद्घाटन इनको अच्छा लगा, जिनको अच्छा लगा हम इनको धन्यवाद दें। तैयार था, वो प्रेजेंटेशन का तैयार है, तो तब भेज के भेज खाली रिफ्लेक्शन सेशन। हाँ होना ही नहीं है, धीरे 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 देखिए कोई तैयारी की इसका सब लोगों का हम तैयार करेंगे। जय सर What qualities make us admirable and beautiful? There are many qualities that can define an admirable person. Some qualities that highly admired people often possess that you can work towards in both your personal and professional life. And first is openness to change. बदलने के लिए खुलापन होना जरूरी है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, लॉयल्टी, निष्ठा, ऑनेस्टी होना जरूरी है। एंड that's all. That's all. चलो जा बोल नहीं बोली ना तैयार Question था, why is it important to identify our positive qualities? So, it is very important to know our positive qualities and keep it in mind to enhance it. It develops a healthy level of confidence and self-worth. To find purpose, it helps to foster positive emotions like awe and gratitude. That's because each of these emotions is tied to well-being. These emotions is tied caring about others and finding meaning in life, which all help us focus on how we contribute to the world. और पॉजिटिव क्वालिटीज में मेरे हिसाब से सबसे अच्छा होता है पॉजिटिव थिंकिंग। अगर किसी के अंदर हो तो वो किसी भी कंडीशन में हमको उसमें बेस्ट ढूंढने का मौका देता है, अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो। और ये हैवी की people having positive attitudes remain hopeful and see best in even difficult situations. Positive qualities and positivity is very important because it helps us to be more creative. In other words, our brain works better when we think positivity. That's all.
क्या बोला जाए इस पे। जितना भी चीज़ सीखे वो एक जो भी चीज़ हम लोग सीख रहे हैं इस पे बोलने को तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा बस इतना ही कहना है कि हर चीज़ को डेवलप करने के लिए एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हर चीज़ डेवलपिंग तभी बनेगा जब हम नॉलेजेबल होंगे, हमारे पास एजुकेशन होगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ सिखाया गया है वो हम लोग के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सिखाया गया है, ताकि हम लोग खुद भी और एजुकेटेड हो सके और नॉलेजेबल पर्सन बन सकें। और जहाँ भी कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं या फिर स्कूल में ही है और स्कूल के अलावा भी कहीं और भी, तो इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करके, इस नॉलेज को लागू करके जो है अब दूसरों को भी सही करें, हम खुद भी सही उसका उपयोग करें। तो मेरे हिसाब से इस सब मेरा फीडबैक अगर लिया जाए तो मेरे हिसाब से एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन आवर नॉलेज। जितना हम जानते हैं, जितना हम सोचते हैं, जैसे कि पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इस सब की बात आती है, तो ये सब तभी डेवलप होगा जब हमारे पास कुछ नॉलेज होगा। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। हम लोग उसका नॉलेज बनाएंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी कुछ भी अच्छा होने का संभावना है, अच्छा होगा। So let's wrap up the feedback session. Now we have questions regarding what we have learned, what we have studied earlier, and this is mandatory for everyone. You have to answer 10 questions, and you will be rewarded 1 marks for each, and then also negative marks in case you do wrong to any question. आपको मेरे बारे में
जीत सर उसको घुमाते
now discuss these questions. Discuss. Check कर लीजिए. So first question is what is drug addiction? और हमने ये सेशन में इस बात को डिस्कस किया था. यहाँ जो ऑप्शंस अवेलेबल है, एडिक्शन टू फूड, दिस इज नॉट अ ड्रग एडिक्शन. डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स, दिस कैन बी taking medicine with valid medical prescription, no, this is not a drug addiction. Not eating a balanced diet. So we have option B, dependency on drugs, and it can be called as drug addiction. So one का होगा option B. Second question is which of the following is not a symptom of mental illness? Clearly it is positive attitude. ये कोई मेंटल इलनेस का सिम्टम नहीं है, इट इज अ गुड थिंग. सो दूसरा का ऑप्शन है सी. थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंसी, एंड वी हैव ऑप्शंस लाइक स्पिरिचुअलिटी, एशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मूड स्विंग्स. क्लियरली स्पिरिचुअलिटी. So right answer is option A, spirituality. Question number 4. Legally, drug abuse is the intake of drug with valid medical prescriptions and for medical purposes. Options are true or false. समझ लेते हैं. बोल रहा है कि ड्रग एब्यूज क्या है? जब ड्रग एब्यूज है जब हम मेडिकल प्रिस्क्रिप्शंस के साथ फायदे के लिए जब मेडिसिन को लेते हैं. इसका आंसर होगा फॉल्स. यानी कि यहाँ पे ड्रग एब्यूज क्या होगा? जब हम ड्रग को मेडिकल पर्पस के लिए ना लें, मेडिकल पर्पस के लिए ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमें वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ, और तब अगर हम कफ सिरप ले रहे हैं, दैट इज नॉट अ ड्रग एब्यूज, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड है. तो इसका आंसर होगा, चौथे का आंसर है बी, यानी कि फॉल्स. पांचवा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन रीजन फॉर ड्रग एब्यूज और ड्रग डिपेंडेंसी? Peer pressure, adventure, a feeling of excitement and euphoria for death. Clearly, मरने के लिए कोई नहीं कर रहा है. So right answer is option D for death. Question number 6. What does window period means? Window period क्या है? Options है period during which a person suffer RTIs. RTIs में हमें कोई window period देखने को नहीं मिलता. So A is not a right answer. 8 to 12 weeks time taken by HIV to develop antibody. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यानी कि वो जो टाइम पीरियड है 8 से 12 सप्ताह का, इसे हम विंडो पीरियड बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. RTI स्टैंड फॉर? राइट आंसर इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. यानी कि ऑप्शन बी, 7 का ऑप्शन बी ये राइट आंसर है. 8. World AIDS Day is celebrated on 1 December. 1 December is the right answer. 9. Which among the following about RTI is not true? Not necessary to take RTI seriously. It can be treated at home easily. It may be treated at home easily, but we have to take it seriously. Otherwise, it can become chronic or serious. So option D is the right answer. Now the last one is HIV can be transmitted through. So right option is D, all of the above. So that's it. I have 7. अगर हमको 7 या इससे above आ रहा है, then it is a good mark. एक गलत है तो फिर माइनस मार्किंग कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग कवर. नाम अपना मेंशन जरूर कर दे. मार्किंग कर लीजिए. अब मार्किंग कर लीजिए.
So finally, we are near to our ending hour, and I will. क्या कर रही So I am very thankful to everyone present here for creating such a beautiful environment and cooperative. You were so cooperative throughout the session, and I was every time I feel like I was one of you. So you people cooperated in such a way, and thanks to principal ma'am and also to our school association, they choose me as a resource person, and I am very thankful for them also. So that's all from my side, and that's all. Thank you. At last, I want to thank you all to cooperate, a school and also Rohit sir to continue this training program successfully, and after completion of today's training program, we have completed target of 20 hours out of 25 hours. Only one day training program is remaining for this session, and I hope you all will conclude many important points from this training session that you will implement in your life, and also to educate the children. Now you all become eligible to cooperate the health and wellness team of the school by giving your support to them. Now at last, I am very proud to you that you all have completed this training program patiently, and also some have shown their intelligence by discussing topic given for reflection session. So at last, I want to give many thanks to Rohit sir and
At last, give a very big hand for Rohit sir.